Good afternoon, children. Today we will start with a new chapter, that is cell, the unit of life. The basic idea about cell you already have because you are studying this chapter since lower classes. Okay, cell is the basic structural and functional unit of life. ठीक है ना, सेल क्या है? एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का. सेल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका. ठीक है. सो सेल इट फॉर्म्स द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ईच एंड every living organism is made up of cell. Some of the organisms may be made up of only single cell, or some of the organisms may be made up of many cells. Okay, but you have to remember that each and every living organism is made up of cell. So now we will start with the introduction of the chapter. Okay, this is, as I have already told you, a cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. That means each and every living organism is made up of cell, either a single cell or many cells, but all living organisms are made up of cell. Now, children, in 9th class you have studied this, that Robert Hooke was the first who had discovered the cell. He was observing the cells of the cork, that is bark of the tree. Okay, and then he was observing it under the microscope. The microscope was self-designed microscope. He has made it, and when he was observing that cells or the cork of this cork under the microscope, he found that the cork is made up of small compartments. Okay, and that compartments later he termed as the cells. Okay, so cork cells were discovered by Hooke. This is the picture of Robert Hooke, who discovered the cell, and Antony van Leeuwenhoek was the first who observed the living cell. ठीक है, रॉबर्ट हुक ने तो पहले कौन सा सेल ऑब्जर्व किया था? कॉर्क सेल्स ऑब्जर्व किए थे. और कॉर्क सेल्स कैसे हैं? वो डेड सेल्स हैं. बट एंटोनी वन लीeuwenhoek ने पहले जो सेल ऑब्जर्व किया था वो था लिविंग सेल. ही टुक द पॉन्ड वाटर, he made the slide, he observed it under the microscope, and he found that there are some organisms which are moving in the pond water, and that were the living cells. Okay, then with the help of the invention of the compound microscope and electron microscope, the detailed structure of the cell was studied. Okay, because electron microscope is a highly magnified microscope. With the help of the electron microscope, the internal parts of the cells can be observed. And even compound microscopes are the microscopes which you have already seen, which we have in our labs. Okay, so with the help of compound microscope and electron microscope, the structural details of the cell could be studied. Now, if we talk about the cell theory, okay, then in the year 1838, Matthias Scladen observed that plants are composed of cells. ठीक है, स्क्लेडन ने 1838 में क्या ऑब्जर्व किया कि प्लांट जो है they are made up of cells, right? And then in the year 1839, Theodor Schwann reported that the cells had the thin outer covering, right? That is called the plasma membrane. He also observed that the plant cells have an extra covering which is called cell wall. ठीक है, तो थियोडर स्वान ने 1839 में क्या ऑब्जर्व किया कि सेल्स के पास एक थिन कवरिंग होता है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और एक एक्स्ट्रा कवरिंग होता है जिसको कहते हैं सेल वॉल. ठीक है, ही प्रपोज्ड अ हाइपोथेसिस दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स are composed of cells and the products of cells. ठीक है, तो
माथियस स्क्लेडेन ने 1838 में क्या कहा कि जो भी प्लांट्स है दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और थियोडर स्वान ने 1839 में ऑब्जर्व किया था कि जो भी सेल्स हैं उनके पास एक आउटर लेयर होता है जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक एक्स्ट्रा कवरिंग होता है जिसको कहते हैं सेल वॉल। ठीक है। नाउ माथियस स्क्लेडेन वाज जर्मन बॉटनिस्ट एंड थियोडर स्वान वाज ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट। ठीक है, ये याद रखना है कि ये स्क्लेडेन जो है ही वाज द जर्मन बॉटनिस्ट, और ये स्वान है वो ही वाज द ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट, राइट। नाउ स्क्लेडेन एंड स्वान हैज गिवन दिस two theories, that is called cell theory. Later in the year 1855, Rudolf Virchow has explained that cells divide and new cells are formed. Okay, cells they undergo division. एक सेल जो होता है वो डिवाइड होता है और उसमें से दो सेल्स बनते हैं। ठीक है, मीन्स जो पहले सेल्स थे उसमें से ही नए सेल्स फॉर्म होंगे। दैट वाज गिवन बाय विर्चॉ, राइट। सो रुडोल्फ विर्चॉ इन द ईयर 1855 एक्सप्लेन्ड दैट cells divide and new cells are formed from pre-existing cells. Okay, he gave omnis cellula acellula, जिसका मतलब है जो नए सेल्स बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में से ही बनते हैं, राइट। सो रुडोल्फ विर्चॉ हैज मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। ठीक है, और फिर उसके बाद तीनों के स्टेटमेंट्स जो थे, स्क्लेडेन और स्वान और विर्चॉ का स्टेटमेंट्स जो थे उनको कंबाइन करके एक सेल थ्योरी दिया गया, एंड दैट वाज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। All cells arise from pre-existing cells. So this is the modified cell theory. ठीक है, I am repeating it once again. All living organisms are composed of cells and products of cells, and all cells arise from the pre-existing cells. ठीक है, this is what? This is cell theory, modified cell theory. Clear, children? Now if we talk about the overview of a cell, then all cell contains cytoplasm. बच्चों ये तुम लोगों को सबको पता है साइटोप्लाज्म क्या है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है ना, वो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है वेयर सेल्यूलर एक्टिविटीज एंड केमिकल रिएक्शंस अकर। सेल्स के जितने भी केमिकल रिएक्शंस है, जितने भी एक्टिविटीज है वो कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। ओके, एंड दिस कीप्स द सेल इन लिविंग स्टेट। क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में सारी एक्टिविटीज होते हैं, सारे रिएक्शंस होते हैं, तो उसकी वजह से सेल क्या होता है? लिविंग स्टेट में रहता है। देन सेल्स ऑल्सो कंटेन्स राइबोसोम्स, ठीक है। Ribosomes are the non-membrane bound organelles which are found in the cytoplasm, which are found in chloroplast, mitochondria and on rough endoplasmic reticulum, ठीक है ना। तो राइबोसोम क्या है? एक सेल ऑर्गेनल है जिसके पास क्या है? मेम्ब्रेन नहीं होता है। इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, ओके, एंड इट इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक सेल ऑर्गेनल है, फिर भी उनके पास ये राइबोसोम्स होते हैं। इवन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम ही इसीलिए दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, जिसकी वजह से उसका सरफेस कैसा हो जाता है? रफ हो जाता है। सो इट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी राइबोसोम्स होते हैं। क्लियर? ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। राइट, दैट इज अबाउट द स्मॉलेस्ट सेल।
Smallest cells, we have already studied this in first chapter, is the mycoplasma, which is smaller than bacteria. ठीक है ना, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं माइकोप्लाज्मा, एंड इट इज 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, राइट. लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच. ठीक है, ऑस्ट्रिच का जो एग है वो भी एक सिंगल सेल है, एंड इट इज द लार्जेस्ट सिंगल सेल विच इज आइसोलेटेड, राइट. देन लॉन्गेस्ट सेल इज द नर्व सेल. जो हमारी बॉडी में नर्व सेल्स है, जो इंफॉर्मेशन पास करता है या फिर इम्पल्सेस पास करता है ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स में या फिर डिफरेंट पार्ट से ब्रेन तक, उसे कहते हैं नर्व सेल्स. तो नर्व सेल्स are the longest cell. Okay, then size of bacteria is 3 to 5 micrometer, and human RBCs have 7 micrometer diameter. Okay, these are the different cells. Now moving to the next slide, which is again about the overview of cell. Now cells on the based on the functions, shape of cells may be disc-like, polygonal, columnar, cuboidal, thread-like और irregular. ठीक है, सेल्स के फंक्शन के बेसिस पर शेप ऑफ द सेल्स होते हैं, एंड इट में द शेप में बी डिस्क लाइक, राइट. इट में बी डिस्क लाइक इन शेप, इट में बी polygonal, columnar, cuboidal, thread-like, or it may be irregular, which we have already studied, right. And then cells are of two types. Number one is the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. ठीक है, अभी prokaryotic cells क्या है, that we will study now, which we have already studied. This is just a revision. Prokaryotic cells are the cells which do not have membrane-bound nucleus and organelles. ठीक है ना, prokaryotic cells के पास जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है. वेल डिफाइंड नहीं होता है मतलब क्या है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. ओके, इवन द सेल ऑर्गेनल्स व्हिच आर प्रेजेंट डू नॉट हैव द मेम्ब्रेन, राइट. Then the examples of the prokaryotic cells are bacteria, blue-green algae, mycoplasma, PPLO. Children, ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में. That is pleuropneumonia-like organisms. Okay, these are all organisms which are prokaryotic, right? And they are generally smaller. Prokaryotic cells are small in size, and they multiply more rapidly than the eukaryotic cells. यूकैरियोटिक सेल से ये जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, दे विल इंक्रीज इन नंबर, ओके, फास्टर देन दैट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, एंड दे वेरी इन शेप एंड साइज. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है अलग अलग शेप्स के हैं, अलग अलग साइज के होते हैं. क्लियर? नाउ bacteria are the examples of the prokaryotic cells, and bacteria have 4 basic shapes. Children, ये भी हम लोग कर चुके हैं. This is just the revision. ठीक है ना. तो कौन से बैक्टीरिया है, बैसिलस है जो रॉड शेप होते हैं, कोकाई which are spherical in shape, vibrio which are comma shaped bacteria, and spirillum which are spiral shaped बैक्टीरिया. यू कैन सी हियर बैसिलस जो रॉड जैसे हैं, कोकस जो है वो स्फेरिकल शेप है. डॉट्स दिखेंगे, अगर स्लाइड में देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो दिखेगा कि वो डॉट्स जैसे हैं. ठीक है, एंड विब्रियो आर कॉमा शेप, वेयरएज स्पिरुलम आर द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, राइट. Now if we talk of the prokaryotic cells, then they do not have the well defined membrane. They do not have the cell covering surrounding to the nuclear membrane. Okay, but they have cell envelope. सेल के बाहर का बाउंड्री तो होता है, ठीक है ना,
पर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन नहीं होता है, नॉट एंड इवन द सेल ऑर्गेनेल्स डू नॉट हैव द कवरिंग, राइट. देन दे हैव मेसोसोम एंड क्रोमेटोफोर्स. ठीक है, mesosomes are the infoldings of the cell envelope, right, and chromatophores are the pores which contains the pigments, right. Then they have nucleoid. You can see here, यहाँ पर nucleoid. nucleoid का मतलब क्या है? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मेम्ब्रेन नहीं है, तो जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है दैट विल रिमेन स्कैटर्ड. ठीक है, जो मेम्ब्रेन के बिना वाला जो न्यूक्लियस है इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, right. Then they have flagella. Flagella is a whip-like structure with which they can move from one place to another place. Okay. They have even the villi and fimbriae, with the help of which they can move. They can engulf the food, means they can take in the food. They have the cell organelles which are called ribosomes. Ribosomes, they are the organelles which do not have the membrane. ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में ऐसे ही ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता. तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है? राइबोसोम. ओके, एंड दे हैव द इंक्लूजन बॉडीज इन देम, राइट. सो दैट इज अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल्स. Yes, now if we talk of the cell envelope of the prokaryotic cells, then the cell envelope is a chemically complex protective covering. जो सेल का कवरिंग है वो कैसा है? वो केमिकल से बना हुआ है एंड इट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एंड एज इट इज द कवरिंग, वो आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो उसका फंक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली इट विल बी प्रोटेक्शन, राइट. सो इट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड इट इज मेड अप ऑफ 3 टाइटली बाउंड लेयर्स. ये जो सेल एनवेलप है उसके भी वापस 3 लेयर्स है, 3 टाइटली बाउंड लेयर्स होते हैं, एंड दैट आर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दिस आर द 3 लेयर्स ऑफ द सेल एनवेलप, राइट. Let us talk about glycocalyx first. Glycocalyx is the outer layer of the cell envelope. Its composition and thickness vary in different bacteria. ठीक है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है और थिकनेस वो वेरी करता है बैक्टीरिया से बैक्टीरिया में. ऐसे नहीं कि सारे बैक्टीरिया के पास सेम अमाउंट ऑफ केमिकल होगा, सेम केमिकल होगा और उसका थिकनेस भी सेम होगा. डिफरेंट बैक्टीरिया के पास डिफरेंट केमिकल्स होता है और उसका थिकनेस भी वेरी करता है. एंड इट मे बी अ स्लाइम लेयर, दैट इज लूज शीट, or capsule which is thick and tough, right. तो glycocalyx क्या है? लूज लेयर भी हो सकता है, that is it may be slime layer, or when it is thick and tough it is called capsule. Clear? Then about the cell wall. glycocalyx के अंदर वाला जो लेयर है, ठीक है, सेल एनवेलप के 3 लेयर्स. सबसे बाहर का ग्लाइकोकैलिक्स, बीच का है सेल वॉल और अंदर का क्या है? सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया. नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट सेल वॉल, द मिडल लेयर, राइट. इट इज मिडल लेयर एंड इट इज सीन इन ऑल प्रोकैरियोट्स. सारे ही प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होता है एंड इट प्रोवाइड्स द शेप टू द सेल and it provides the structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. ठीक है, ये जो सेल वॉल है उसकी वजह से सेल को शेप मिलेगा और सेल बर्स्ट नहीं होगा या फिर कोलैप्स नहीं होगा, राइट. इट इज बिकॉज ऑफ द सेल वॉल. एंड लास्टली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच इज द इनर लेयर. इट इज सेमी परमिएबल. चिल्ड्रन, सेमी परमिएबल भी ऑलरेडी पढ़ चुके हो. सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? इट डजंट अलाउ ऑल द सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, ओनली फ्यू सब्सटेंसेस विल क्रॉस द मेम्ब्रेन. ठीक है, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं. तो सबसे अंदर का जो लेयर है, इनर लेयर, इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर and interacts with the outside, right.
This is structurally similar to that of the eukaryotes. ठीक है, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोट्स में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, राइट? नाउ based on the types of the cell envelopes and response to the gram staining, bacteria are of two type. ठीक है ना, बैक्टीरिया का जो सेल एनवेलप है उसका नेचर मीन्स वो कैसे ग्राम स्टेन को रिस्पॉन्स करता है, उसके बेसिस पर there are two types of bacteria. Number one is gram positive bacteria and number two is gram negative bacteria. Gram positive bacteria, they take up the stain, ठीक है, ग्राम स्टेन जो है उसको वो लेगा और उसको रिटेन करेगा, मीन्स उसको उसका कलर मिलेगा. दैट आर कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द ग्राम स्टेन. ठीक है ना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो ग्राम स्टेन का कलर नहीं लेगा, राइट? सो सच बैक्टीरिया विच डू नॉट टेक अप द ग्राम स्टेन आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, while those which take up and retain the gram stain are called the gram positive bacteria. Okay. Now children, about mesosome and chromatophores, which are the membranous structure, we will be studying in our next video. I hope today's topics are clear to everyone. In our next video, we will continue with the prokaryotic cells. Thank you.